हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 10th एनआईएस बोर्ड का जो है सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का जो है चैप्टर नंबर 10, जिसमें हम आज करेंगे क्लाइमेट यानी जलवायु, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है हर एक क्लास के बच्चों के लिए। ठीक है, चाहे वो सीबीएसई में पढ़ते हो, चाहे एनआईएस बोर्ड में पढ़ते हो, चाहे यूपी बोर्ड के बच्चे हो, चाहे बिहार बोर्ड को। इवन कि जो बच्चे कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। और साथ में इसमें हम क्लाइमेट के अंतर्गत हर एक पहलू पर विचार करेंगे और हर एक जो है पॉइंट पे प्रकाश डालेंगे और हर अछूता जो पॉइंट रहेगा उस पर हम अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे और ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। लेकिन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं सदैव कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए, इवन अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू ना जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे, इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो। ठीक है, व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों एनआईएस सेंटर जो कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th 10th 11th 12th हो, चाहे वो एनआईएस बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे बीए एमए के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है त्रिपाण सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों ये तो बात था आपके लिए, लेकिन आप देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। द नेक्स्ट टॉपिक इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट हियर, mechanism of monsoon. Mechanism of monsoon. The word monsoon is derived from the Arabic word is a monsoons, which is mean to the season. There is the monsoon is derived from Arabic words is a monsoons, which mean to the season. Monsoon refer to the seasonal is reversal and the wind direction during a year. During the summer, the interior part of the northern Indian plain is covering Rajasthan, Punjab, Haryana and western Uttar Pradesh are intensely hot. The daily maximum temperature in some of this part is as high as 45 Celsius to 47 Celsius. Given below to indicate their climatic diversity in India and try to understand their varying temperature that a different stations in India have. That is important. The mechanism of monsoon here. The next year of temperature in Celsius and rainfall in centimeter of some important station in India. That is important here. You know that there is a stations and temperature here. There is the most important LH. There is temperature is there different time period different here. Jan, Feb, March, and there's December also. And Shillong has the temperatures and rainfall given on table, and daily is the temperature and rainfall here. And Jaisalmer, there's most in Jaisalmer is the temperature here and the rainfall. That's important. But Shillong is the maximum rainfall is noted here. July, there is a July and June. There is June is a maximum here. Is a 476 rainfall. But temperature here a maximum 21 Celsius only. But other side there is important. The other side is daily. There is a March is very hottest day. Is here 34 and June is 35. There is a most important temperature table here and rainfall also. The average maximum temperature is above 33 Celsius in the month of May to Delhi. There is a May at a Delhi and the Jodhpur such as a high temperature heat up to the air of that region. Hot air arises is a low pressure area is created under it, and this low pressure is also known as the monsoon tuft. It's lies between the Jaisalmer in the west and Balamsore in the Odisha in the east. That is important. The average maximum temperature is about 33 Celsius in the month of May in Delhi. Delhi is also is 35 Celsius and the Venikiri and Jodhpur also.
On your map, there is a temperature of moist season, moist time. There is the most important here. There a temperature is a varied above is a low pressure tuff there is side, and there a maximum in temperature is here a moist side. There are 46 Celsius, 45 Celsius, and 42 Celsius. There is a very high temperature or noted this in point here. On the other hand, the temperature over India is ocean is relatively is low as the water need to the more time to get heated as a compare to be land. So a relatively high pressure region is created over to the sea. And see there a map 10.2 gives below of try to understand there is a given phenomenon. And there are difference of temperature and strength pressure over to north center India as a plain and Indian oceans. Due to this difference, air from to high pressure region of the sea and start to the moving toward the low pressure region of northern India. Thus, by there mid June to a general movement of air is from the equatorial region of India and oceans to the Indian is a subcontinent, and the direction of these winds in a general is from a southwest to northeast, and this direction is extremely is the opposite to be that of the trade. Wind northeast to southwest, a prevalence during to winter India. This complete reversal of a wind direction from the northeast to be southwest and vice versa is known as a monsoon. There is an important here map on your screen. There is a advancing southwest monsoon and temperature of June. There is an important here advancing the southwest monsoon and temperature of June. You know that the June's here condition is very hot, and on your screen there is the most important show here the 42 Celsius temperature on June. There is a Maharashtra side, and also 46 here Madhya Pradesh, and June here Uttar Pradesh. There is the most important show on your screen. This wind is originate over to the warm seas and therefore they contain a lot of moisture. When this moisture is laden, winds as a move over to the India subcontinent and they causing a bare, wild and separate rain throughout their India, and from June to September, 80% to 90% of the total rainfall in the India is confined to be this 4 month only. That is important. And next year, characteristics of the monsoon. There is important characteristics of monsoon. Monsoon are not steady winds. They are irregular in the nature affected by the different atmospheric condition. Due to regional climatic condition, sometime monsoon earlier, sometime late. That is important. There is a monsoon are not a steady winds and they are irregulars in the nature and affected the different atmospheric condition, and due to regional is the climatic condition and sometime monsoon earlier or sometime late. Monsoon are not equally distributed. Coastal area like Kerala, West Bengal and Odisha, these have heavy rainfall. A very interior region like Haryana, Madhya Pradesh, these have less rainfalls. There is a rainfall is not equally distribution here. And third point here, when the monsoon arrive, it will give a heavy rainfall which continue to be a several day, and this is known as the burst of monsoon. There is a most important question for the exam view. What is a burst of monsoon? When the monsoon arrive, it give a heavy rainfall. There is a only means is a heavy rainfall which continue to several day. Heavy rainfall continue for a several day. It's known as a burst of monsoon, and this occur mainly is a Kerala coastal where is the rich of frost. यहाँ पर जो हमारे समक्ष आया है अत्यंत महत्वपूर्ण पॉइंट, मानसून का रचना तंत्र काफ़ी महत्वपूर्ण है कि मानसून का आखिर किस प्रकार से जो है यहाँ पर वितरण दर्शाया गया है। मानसून शब्द की उत्पत्ति अगर हम देखें तो अरबी भाषा के शब्द मौसम से हुई है, जिसका अर्थ है मौसम या ऋतु। तो आप समझ सकते हो कि मानसून शब्द का जो हमें मिला है उत्पत्ति हुई है वो अरबी भाषा के शब्द मौसम से हुई है, जिसका अर्थ ही होता है मौसम या ऋतु। वर्ष के दौरान पवनों की दिशा में जो है ऋतु परिवर्तन ही मानसून कहलाता है, यानी वर्ष भर में दौरान
पवनों की दिशा में जो ऋतुवर्त परिवर्तन ही मानसून कहलाता है। यानी जो ऋतु में परिवर्तन हमें देखने को मिलता है उसी को ही हम मानसून कहते हैं। गर्मी के दौरान उत्तर भारतीय मैदान के भीतरी भाग बहुत अधिक गर्म होता है। यानी गर्मी के दौरान उत्तर भारतीय मैदान के भीतरी भाग बहुत अधिक गर्म हो जाता है, जैसे राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। इन भागों में दैनिक अधिकतम तापमान जो है 45 सेल्सियस से 47 सेल्सियस तक हो जाता है, क्योंकि ये क्षेत्र ऐसे हैं जो कि काफ़ी गर्मी के लिए ही जाने जाते हैं। और इन प्रदेशों में दैनिक अधिकतम तापमान काफ़ी रहता है 45 से 47 सेल्सियस टेम्परेचर, जो काफ़ी महत्वपूर्ण बनाता है। नीचे दी गई तालिका में हम जलवायु के पीढ़ियों को दर्शाए गए हैं जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। यानी हम तालिका देखेंगे, उसमें देखेंगे कुछ क्षेत्रों को जहाँ पर जो है वर्षा और रेनफॉल में कितने जो है डिफरेंस देखने को मिलता है। यहाँ पर आप समझ सकते हो कि भारत में कुछ महत्वपूर्ण स्टेशनों और मासिक औसत तापमान जो सेल्सियस में तापमान और सेंटीमीटर में दिए हुए हैं। तो सेंटीमीटर में जो होती है रेनफॉल को हम नापते हैं और तापमान को जो है सेल्सियस या केल्विन या फ़ारेनहाइट में नापते हैं, बट यहाँ सेल्सियस के रूप में दर्शाया गया है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए स्थान यहाँ दिया हुआ है लो का तापमान जो होती है आप देख सकते हो माइनस में रहता है। सिर्फ जून, जुलाई, अगस्त में टेम्परेचर काफ़ी बढ़ जाता है, लेकिन वर्षा देखें तो यहाँ पर बहुत ही कम होता है, 10, 8। तो समझ सकते हो कितना कम यहाँ पर सेंटीमीटर वर्षा होती है। वहीं शिलोंग की बात करें तो शिलोंग जो है सबसे अधिक वर्षा के लिए जाना जाता है और यहाँ जून के समय जो है 476 सेंटीमीटर वर्षा दर्ज की जाती है। यानी देखा जाए तो जून से लेके सितंबर तक 300 के ऊपर यहाँ पर जो है बरसात की जो है पारा नोट डाउन की जाती है। वही दिल्ली में देखें तो दिल्ली में जो है मार्च से लेके जो है जुलाई, अगस्त तक यहाँ पर 30 सेल्सियस टेम्परेचर नोट की जाती है। यानी ये सारे टेम्परेचर जो है गर्मियों को दर्शाते हैं। और यहाँ पर मैक्सिमम जो बरसात जो है जुलाई में होती है, जहाँ 186 सेंटीमीटर होती है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर हम आगे करें जैसलमेर का, जैसलमेर जो है तापमान के लिए जाना जाता है, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर मैक्सिमम टेम्परेचर जो है मार्च से लेके यहाँ पर आप देख सकते हो कि अगस्त तक से लेकर सितंबर तक टेम्परेचर जो है 30 से अबव ही रहता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। और वहीं वर्षा की बात करें तो यहाँ पर बहुत ही कम वर्षा होता है। अब देखिए यहाँ पर 0.2 सेंटीमीटर वर्षा की बात की गई है, तो इसका मतलब यहाँ पर बहुत ही कम वर्षा दर्ज की जाती है। उसके पश्चात अगर हम मुंबई की बात करें तो मुंबई में जो है सबसे अधिक वर्षा यहाँ नोट की जाती है। आप देख सकते हो कि 465, 613, जैसे कि देखने से ही पता लग रहा है कि यहाँ पर बरसात काफ़ी तगड़ी होती है, जिसका आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। तो मुंबई काफ़ी बरसात के लिए जाना जाता है। इवन कि बरसात के टाइम देखा जाए तो मुंबई की बहुत बुरी हाल हो जाती है और ये हर साल होता है। वहीं चेन्नई की बात करें तो चेन्नई में टेम्परेचर जो है मार्च से लेके अगस्त, सितंबर तक जो है टेम्परेचर 30 से अबव ही रहता है। और यहाँ पर बरसात जो होती है यहाँ अक्टूबर के आसपास होती है, जहाँ पर 306 से लेके 350 तक देखा गया है। तो ये बरसात जो होती है मई सर्दियों के टाइम यहाँ पर तगड़ी होती है। वहाँ वही देखें हम त्रिपुरम का ये तापमान देखें तो यहाँ पर जो है 30 सेल्सियस से नीचे ही टेम्परेचर रहता है, लेकिन यहाँ बरसात जो है मैक्सिमम 300 से भी अधिक है। कहते हैं दिल्ली और जोधपुर में मई के महीने में औसत अधिकतम तापमान जो होती है 33 सेल्सियस से अधिक होती है और इस तरह के उच्च तापमान उन क्षेत्रों की हवा को काफ़ी गर्म कर देती है। कहते हैं गर्म हवा जो है ऊपर उठती है तथा सतह पर कम दबाव का क्षेत्र बन जाता है और इस कम दबाव मानसून गत के रूप में भी जाना जाता है। और यह पश्चिम में जो है जैसलमेर और पूर्व में उड़ीसा के बालासोर के मध्य स्थित होता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि तापमान जो है यहाँ पर दिल्ली और जोधपुर में जो है 33 सेल्सियस के आस से पास रहती है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब इसी बात को अगर हम देखें मानचित्र में तो काफ़ी क्लैरिटी और भी आ सकती है। अब यहाँ पर मानचित्र में आप देख सकते हो कि भारत का मई का तापमान जो होती है, कहते हैं डिफरेंस एरिया में डिफरेंट टेम्परेचर नोट करना तो स्वाभाविक है, लेकिन देखा जाए तो भारत के जो है सेंटर में आप टेम्परेचर देख सकते हो 46 सेल्सियस से 45-42 के आसपास रहता ही रहता है। और ऊपर के साइड देखा जाए तो कम दबाव गत होती है।
तो ये मैप को भी से समझ सकते हो कि यहाँ पर टेम्परेचर जो है किन क्षेत्रों में कैसी दिखती है। कहते हैं 40 सेल्सियस टेम्परेचर जो बिहार के आसपास जो है काफ़ी महत्वपूर्णता को दर्शाता है, यानी उत्तर प्रदेश के क्षेत्र के आसपास ही लग रहे हैं जहाँ 40 सेल्सियस टेम्परेचर के आसपास बनी रहती है। तो ये मानचित्र काफ़ी महत्वपूर्ण है। दूसरी ओर अगर हम बात करें तो हिंद महासागर के उत्तर तापमान अपेक्षाकृत कम होती है। पानी भूमि की तुलना में अधिक समय में गर्म होता है इन क्षेत्रों में, इसलिए समुद्र के ऊपरी अपेक्षाकृत उच्च दबाव क्षेत्र बन जाता है। उत्तर दिए गए मानचित्र में 10 पॉइंट में हमने देखा ही है कि ये घटनाक्रम को समझने की काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा इसके लिए। और इस प्रकार उत्तर मध्य भारतीय मैदान और हिंद महासागर का तापमान और इसके परिणाम स्वरूप वायुदाब में काफ़ी अंतर होता है। इस अंतर के कारण जो है समुद्र के उच्च दबाव क्षेत्र से पवनें उत्तर भारत के कम दबाव के क्षेत्र पर की ओर चलने शुरू हो जाती है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस प्रकार जो है मध्य जून तक हवा की सामान्य दिशा हिंद महासागर के भूमध्य रेखा क्षेत्रों में भारतीय उपमहाद्वीपों की ओर हो जाती है। इन हवाओं की दिशा सामान्यतः दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर होती है और यह दिशा भारत में सर्दियों के दौरान जो है प्रचलित व्यापारिक उत्तर पूर्व के दक्षिण पश्चिम पवनों को बिल्कुल ही विपरीत है। पवनों की दिशा का यह उत्क्रम उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम और इसके विपरीत मानसून के रूप में जाना जाता है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। उसके पश्चात यहाँ पर एक मैप आया है, ये अग्रणी दक्षिण पश्चिम मानसून और जून का तापमान को दर्शाया गया है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप समझ सकते हो कि यहाँ पर टेम्परेचर किस तरह से जो है वेरी कर रहा है। यहाँ जून के समय सबसे अधिक टेम्परेचर यहाँ पर नोट किया गया 40 सेल्सियस टेम्परेचर, वहीं 45 सेल्सियस। लेकिन ये जो है इसके दबावों को भी यहाँ पर दर्शाया गया है। जो एरो लगे हुए हैं वो बता रहा है कि जो ये पवनें किस प्रकार की दूसरे साइड की तरफ चल रहे हैं। तो आप देख सकते हो ये जो है अरब सागर और जो है बंगाल की खाड़ी से ये सारे पवनें उठ रही है आगे की तरफ। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण मानचित्र है जो आपके समक्ष प्रस्तुत है। इन हवाओं की उत्पत्ति गर्मी समुद्र के ऊपर होती है, इसलिए इनमें बहुत अधिक नमी होती ही है। जब यह आंध्र पवनें भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पहुंचती है तो ये पूरे भारत में जून से सितंबर के बीच 4 महीनों में व्यापक वर्षा भी करती है। जून से सितंबर के बीच भारत की कुल वार्षिक वर्षा का देखा जाए तो 80% से 90% तक होता है। तो जगह काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप समझ सकते हो कि जून से सितंबर के बीच भारत कुल वार्षिक वर्षा का जो है 80 से 90% तक होती है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। उसके पश्चात हमारे समक्ष है मानसून की विशेषता। कहते हैं मानसून की अपनी एक विशेषता होती है, तो ये जानना काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। मानसून पवनें अस्थायी पवनें नहीं होती है, यानी मानसून पवनें जो होती है अस्थायी पवन नहीं होती है और वह प्राकृतिक में अनियमित है एवं वातावरण की दिशा विभिन्न दिशाओं और जैसे क्षेत्रीय जलवायु दशाओं से काफ़ी प्रभावित होती है। किसी वर्ष मानसून जल्दी आता है तो कभी देर से आता है। तो ये जनरली भारत में देखने को मिलता है, कभी मानसून बहुत जल्दी आता है तो कभी मानसून जो है बहुत ही देर से आती है। मानसून सामान्य रूप से जो है वितरित नहीं है। भारत में देखा जाए तो मानसून जो है सामान्य रूप से वितरित नहीं है। केवल पश्चिम बंगाल उड़ीसा जैसे तटीय क्षेत्र भारी वर्षा प्राप्त करते हैं। यानी देखा जाए तो मानसून जो है सामान्य रूप से वितरित नहीं है और केवल पश्चिम बंगाल उड़ीसा जैसे तटीय क्षेत्र भारतीय वर्ष जो है भारी वर्षा यहाँ पर करते हैं, जबकि हरियाणा मध्य प्रदेश जैसे आंतरिक क्षेत्रों में कम वर्षा प्राप्त होती है। तो आप समझ सकते हो कि मानसून की विशेषता हर क्षेत्र में अलग अलग दर्शाया गया है। उसके पश्चात हम तीसरे पॉइंट की बात करें, कहते हैं जब मानसून आता है तो सैकड़ों दिन तक भारी वर्षा होती है। जब मानसून आता है तो सैकड़ों दिन तक भारी वर्षा होती है और यह मानसून के फटना के रूप में जाना जाता है। यानी मानसून को फटना कहते हैं, यानी बहुत तेज़ बारिश हो और कई दिनों तक रहे तो इसे हम क्या कहते हैं, ब्रस्ट ऑफ मानसून, यानी मानसून का फटना। ठीक है, और यह मुख्य रूप से केरल तट पर होती है जहां यह सबसे पहले पहुंचता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण थी, काफ़ी ज़रूरी बात थी जो हम यहाँ पर जो है विचार विमर्श किए। तो आपको अच्छा लगा, समझ में आया, आपने पसंद किया तो आप लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जितना हो सके इस वीडियो को दूसरे बच्चों तक पहुंचाने में आप तिरपान स्टडी सेंटर का हेल्प कर सकती हो। और इसलिए कुछ नहीं करना है, यूट्यूब से लिंक को कॉपी करके व्हाट्सएप एड्रेस पे लगा देना है। देखिए दोस्तों, जितना ज़्यादा फैलाइएगा उतना आपके लिए
बेहतर से बेहतर त्रिपाण स्टडी सेंटर करने की कोशिश करेगा। ठीक है, अगर पहली बार वीडियो देख रहे थे सोचिए मत, विचार मत कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में सेव कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तो आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त नहीं होगा और बाद में कोई टॉपिक रिसर्च कीजिएगा तो शायद दूर दूर तक त्रिपाण स्टडी सेंटर नज़र नहीं आए। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेती हो, ठीक है, तो आपको जो है यूट्यूब पे आपको जो इसके जो चैनल है इस पर आपको सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। यहाँ पर प्लेलिस्ट भी मिलेगा जहाँ पर सारे वीडियो आपको जो है दिखेंगे, टॉपिक वाइज, सिलेबस वाइज, क्लास वाइज। तो काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। इवन कि जब एग्ज़ाम आएगा तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसमें डाला जाएगा जो कि एग्ज़ाम व्यू से बहुत महत्व रहेगा और एग्ज़ाम में आएगा। तो इसे सब्सक्राइब कर लेना ही आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद में रहोगे। इसलिए सोचिए नहीं, विचार नहीं कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में त्रिपाण स्टडी सेंटर को सेव कीजिए।